सो बेसिकली अभी तक एंजाइम्स के चैप्टर में हमने डिस्कस की हैं एंजाइम की बेसिक प्रॉपर्टीज दैट एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स एंड दे आर प्रोटीन इन नेचर दे कैटलाइज ऑल द केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म बेसिकली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स all the chemical reactions whether it's catabolic reaction or an anabolic reaction it is controlled by an enzyme basically provide their surface area and they uh, lower the activation energy. Enzymes are specific for their substrate because they have a complementary shape. Lock and key model में हमने discuss किया था. Just like lock and key are complementary to each other, the key fits into the lock. Just like that, the substrate fits into the enzyme. Enzyme and substrate have complementary shape and they can fit into each other. That is the reason that every enzyme is specific for its own substrate. All the enzymes that we know of, they particularly have a substrate of specific shape जिस पे वो काम करते हैं. जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है in this given example that we have amylase, an enzyme that works on starch. Now amylase only works on starch because it has a complementary shape to starch. Similarly, maltase only works on maltose because it has a complementary shape to maltose. Because of their specific shapes and complementary shapes, they only work on their own substrate. They cannot work randomly on any substrate. Just like a key cannot open any lock, it has a specific lock to open. Just like that, an enzyme has a specific substrate. Okay. Now, moving forward, this is an example of anabolic reaction where two smaller substances join together to make a larger substance. आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे दो छोटी चीजें या दो से ज्यादा छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बना दें, उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं या एनाबॉलिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर, ये दो ग्लूकोज के रिंग्स हैं, ये आपस में ज्वाइन होते हैं और इससे बन जाता है एक डाइसैकराइड जिसे हम माल्टोज कहते हैं. या एक ग्लूकोज का रिंग और एक फ्रुक्टोज का रिंग आपस में ज्वाइन होते हैं और इससे बन जाता है एक डाइसैकराइड जिसका नाम सुक्रोज है. इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि स्मॉलर सब्सटेंसेस are joining together to make a larger substance. So whenever smaller substances are joining together to make a larger substance, the reaction is called anabolic reaction. On the contrary, when larger substance is broken down into two or more smaller substances, that reaction is called catabolism. Both of these are examples of metabolism or types of metabolism. Okay, so sum of all the chemical reactions in your body, sum of all chemical reactions is called metabolism. So all the chemical reactions that are happening in your body are example of metabolism, are called metabolism, and then metabolism is divided into two types, two categories. One is anabolism. Any reaction in which smaller substances join together to make a larger substance is anabolism. And the second example or second category is catabolism, in which a larger substance is broken down into two or more smaller substances. Very simple. So all the chemical reactions are catalyzed by enzymes, whether it's anabolic reaction or catabolic reaction. Both of these are catalyzed by enzymes. Both of these are controlled and managed by enzymes. And how do enzymes work? Basically, they provide the surface area for the substrate. As you can see here, enzyme would provide the surface area. It would hold the substrate molecule in a way that it becomes easier for this molecule to react, to be broken down or to be added with another substrate molecule. सो ये मॉलिक्यूल को इस तरह से होल्ड करता है, उसकी शेप को इस तरह से ऑल्टर करता है कि उसके लिए केमिकल रिएक्शन करना आसान हो जाता है. हम कहते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, रिड्यूस करता है. अब आप पूछेंगे सर एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू बिगिन. हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कहां डिस्कस किया था? अच्छा, यहां पर नहीं किया था. बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी जो है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, इनिशिएट होने के लिए, प्रोसीड करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है
जो एब्जॉर्ब करके ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, unless that activation energy is absorbed, the reaction will not proceed. So until and unless the enzyme absorb the substrate molecules would absorb the activation energy, the reaction would not proceed. The reaction would not continue. So a particular amount of energy is required. Let's say that this substrate molecule, when it absorbs 50 kilojoules of energy, it will be converted into its products. तो एक्टिवेशन एनर्जी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए विदाउट एंजाइम 50 किलो जूल्स है। अगर एंजाइम मौजूद ना हो तो इस सबस्ट्रेट को द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दिस सबस्ट्रेट इज 50 किलो जूल्स। 50 किलो जूल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 50 kilojoules of energy is required for this substrate to be converted into the products. अब 50 kilojoules of energy required है, लेकिन जब एंजाइम आ जाता है तो टोटल रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. सो without enzyme the amount of energy required by the substrate molecule for the reaction to proceed is 50 kilojoules. That means the activation energy without the enzyme is 50 kilojoules, but with the enzyme the activation energy is lowered. Let's say now the activation energy is 10 kilojoules. This is the amount of energy required by the substrate for the reaction to proceed. So because the activation energy is now reduced, now it is lowered, it would be easier for the substrate molecule to absorb this energy. Obviously, more energy, if the activation energy is higher, it would take more time for the substrate molecule to absorb it. अगर मैं आपसे कहता हूं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने 50 किलो जूल्स एब्जॉर्ब करनी है और 10 किलो जूल्स एब्जॉर्ब करनी है, किस में ज्यादा टाइम लगेगा? 50 किलो जूल्स एब्जॉर्ब करने में ज्यादा टाइम लगेगा या 10 किलो जूल्स एब्जॉर्ब करने में ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 50 में ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हायर. So more time is required to absorb more energy. Less time is required to absorb less energy. That's why this reaction would be faster. So with enzyme, because the activation energy is lowered, the reaction would proceed at a faster pace. ठीक है? अच्छा, दो चीजें हमने डिस्कस की थी जो अब देखें, वैसे तो बहुत सारी चीजें जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं. एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को कितनी देर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, या इसे आप यूं कह लें कि रिएक्शन कितना तेज होगा. द रेट ऑफ रिएक्शन इज कि रिएक्शन कितना तेज होगा. मैं इसे शॉर्ट में ROR, रेट ऑफ रिएक्शन कहता हूं. आप ये भी कह सकते हैं इट इज द स्पीड at which reaction proceeds or how fast the product is formed. इसकी डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन का अगर कोई आपसे पूछे हाउ वुड यू डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी डेफिनेशन में अक्सर लोग फंस जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करें. देखिए, एक कार के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कार की स्पीड को आपने डिफाइन करना है, एक कार है आपके पास, इसकी स्पीड पॉइंट ए से पॉइंट बी गई ये कार, इसकी स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीड क्या होगी इसके लिए? आप कहेंगे कितनी देर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या आप कहें यूनिट टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. अंग्रेजी में कहें तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, बिकॉज द कार इज मूविंग. So distance covered in unit time, that means how much distance it covers. Unit time could be 1 second, it could be 1 hour. Let's say how many kilometers it covers in an hour, that's the speed of the car. But for the reaction, because it is taking place in a container, it is not moving. It doesn't move, at least not visibly. So what we are going to say about the rate of reaction is slightly different from the speed of the car. We would say how much product is being formed. So we can say that product formed in unit time. Amount of product formed in unit time. Let's say if the product is gas,
Let's say oxygen is being made, as you have seen in photosynthesis. Photosynthesis is also a chemical reaction which is happening in the plants, in the chloroplast of the leaves. सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है प्लांट्स में जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, विच इज अ केमिकल रिएक्शन. The product that is formed along with glucose, one of the products that is formed is oxygen. Because oxygen is a gas, we can calculate the volume of oxygen in centimeter cube. So I can say the rate of reaction for photosynthesis is amount of oxygen formed in centimeter cube per minute. That's the rate of reaction for photosynthesis. So amount of product formed in unit time, that is the definition. Please write it down so you remember the definition. For rate of reaction, not just photosynthesis, for any chemical reaction, the rate of reaction is defined as the amount of product formed in unit time. Another way of defining this would be amount of substrate used in given time or in unit time. कितना प्रोडक्ट बना या कितना सबस्ट्रेट यूज हुआ, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ इन यूनिट टाइम. आप कोई सी एक याद रख लें. अब कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा यूनिट टाइम में, यानी कि एंजाइम की स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. मिसाल के तौर पर जैसे हम बात कर सकते हैं पीएच की. एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव. एंजाइम को एक पर्टिकुलर पीएच या एक नैरो रेंज ऑफ पीएच चाहिए होती है जिसमें वो बेस्ट काम कर सकते हैं, और ये पीएच की रेंज हर एंजाइम के लिए मुख्तलिफ भी हो सकती है. अब ज्यादातर एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो न्यूट्रल पीएच पे काम करेंगे. अगर आप पीएच स्केल देखें तो पीएच स्केल 0 से 14 तक होगा. 14 बीइंग हाईली अल्कलाइन और 1 बीइंग, आप इसे 1 से 14 कर लें, 1 बीइंग हाईली एसिडिक. 7 इज न्यूट्रल, ना ये एसिडिक है ना ही बेसिक है. 7 is neutral. So this is the pH scale. This is the reading of the pH scale. So if something is above 7, if something has pH above 7, it is alkaline. If something has pH below 7, it is acidic. So there are a few enzymes in your body that work in acidic environment. For example, you'd have heard about pepsin, renin. These are the enzymes present in your stomach. Pepsin basically works on protein. These enzymes require acidic pH to work. Highly acidic, not slightly acidic. Highly acidic pH to work. That's one of the reasons why your stomach would release gastric juice. The juice that contains HCl, hydrochloric acid. Hydrochloric acid does two things. Number one, it kills the germs present in your food. Plus, it provides the acidic environment needed by the enzymes. So some enzymes would need acidic environment. Most enzymes in your body would need neutral environment. Like salivary amylase works on neutral environment. Then we have a few enzymes that would work on slightly alkaline pH. For example, lipase, an enzyme in your duodenum, the first part of your intestine. Lipase works at pH 8. It's more than 7. It's slightly alkaline. So the activity of this enzyme is best at pH 8. So we have established that enzymes are sensitive for the pH. They are pH sensitive. They are also temperature sensitive. We have talked about this before as well. Why are they temperature sensitive? Because when you increase the temperature, the enzymes and the substrate molecules would start moving faster in the container because their kinetic energy is increased. If their kinetic energy is increased, the enzymes
would start moving faster. The substrate molecules would start moving faster. So in that given container, more enzyme substrate complexes will be formed because there are higher chances of collision when they're moving faster. More ESC, more enzyme substrate complex will be formed, hence more product will be formed. So the rate of reaction would become faster when you initially increase the rate, the temperature. But eventually it reaches the maximum rate. This point, the temperature at this point when the enzyme's activity is at its best is called optimum temperature, whatever the temperature is. In your body, the optimum temperature for most enzymes is around 40 degrees Celsius. So the enzymes in your body would work best at 40 degrees Celsius because that's their optimum temperature. But if you further increase the temperature, after they have reached the optimum temperature, if you further increase the temperature, the enzyme quickly becomes denatured. Denatured means the shape is changed. The shape is altered, as you can see here. Because enzymes are made up of amino acids, we know that all the enzymes are protein in nature, and all proteins are made up of amino acids. So enzymes are also made up of amino acids. The bonding between amino acids, especially the hydrogen bonding, is disturbed when you increase the temperature or when you change the pH. Because of that, the shape of the molecule would be altered. This is a denatured enzyme, which is no longer able to bind with the substrate molecule. A denatured enzyme cannot bind with the substrate molecule anymore. Hence, it becomes useless. It does not work. Now, denaturing is permanent. Even if you reduce the temperature later, you heat the enzyme at 60 degrees Celsius, the enzyme would be denatured. If it's a human enzyme, it would be denatured. Then you cool it down to 30 degrees Celsius. Even after cooling it down, the enzyme won't get back its original shape because the denaturing is permanent. This is the rate of reaction. Temperature increases the kinetic energy. We have already discussed everything up to this point. So now if you have any questions in the topics that we have studied up till now, up till this point, before we do the investigations, अगर कोई आपके जहन में जरा सा भी डाउट है किसी चीज पर, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं बिफोर वी प्रोसीड. I'll give you 1 minute to think about this. अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, now is the time to ask. Because as you increase the temperature, the rate of reaction slowly increases. It's not as steep as the decline. The decline after the optimum temperature is steeper. तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता रहता है. लेकिन जब आप टेम्परेचर मजीद इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम एक साथ डीनेचर हो जाते हैं, इसलिए ये स्लो 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 नहीं होता. डिक्लाइन बहुत स्टीप होता है. हाँ जी, और कोई चीज, और कोई क्वेश्चन? हाइफा, हानिया, सेलिना, किसी का भी कोई क्वेश्चन है? हानिया, व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट एंजाइम की वो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है. तो अगर ये आपको एंजाइम नजर आ रहा है, आपको पता है कि सबस्ट्रेट ने इस पॉइंट पर आके बाइंड करना है. यहां पर आपको नजर आ रहा है कि सबस्ट्रेट यहां पे बाइंड करता है. तो जिस पॉइंट पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं. हानिया, पीएच का मतलब है, पीएच बेसिकली मेजर करती है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी अल्कलाइन है.
तो पीएच स्केल जो है वो 1 to 14 आप कह लें कि 1 से 14 तक होता है, 14 being highly alkaline and 1 being highly acidic. Let me explain this first. फिर उसके बाद सेलिना मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं. So 1 से no, every enzyme would have different pH at which it would work best. जैसे अगर आप पेप्सिन की बात करते हैं तो पेप्सिन would work best at pH 2, which is highly acidic pH. ये न्यूट्रल pH पे काम नहीं करेगा पेप्सिन, लेकिन मोस्ट एंजाइम्स जैसे कि मैंने आपको अमाइलेज की एग्जांपल दी थी वुड वर्क बेस्ट एट pH 7. ये न्यूट्रल pH है. कुछ एंजाइम ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि लाइपेज जो स्लाइटली अल्कलाइन pH पे काम करता है, जैसे कि pH 8. लाइपेज वर्क्स बेस्ट एट pH 8. ये आपके डिओडेनम में मौजूद होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. पेप्सिन आपके स्टमक में मौजूद होता है और अमाइलेज आपकी बकल कैविटी माउथ में मौजूद होता है. सब अलग अलग पीएच पे काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एंजाइम्स न्यूट्रल पीएच पे ऑब्वियसली काम करते हैं. और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स? शबी, तलहा, हानिया, सेलिना. सेलिना आपने सवाल पूछा है कितने टॉपिक्स हो गए. ये दूसरा टॉपिक समझ लें आप चल रहा है. हमने इतवार को संडे वाली क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था और ये एंजाइम्स दूसरा टॉपिक है. तो अभी इस रिवीजन में आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे. उसके बाद हम मिड ईयर करेंगे. तकरीबन आप समझ लीजिए कि 12 चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे. उसके बाद मिड ईयर असेसमेंट होगी. गूगल ड्राइव के लिए आपको एडमिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा. ये मैं आपको स्पेशली मैसेज भी कर चुका हूं. उनके पास एक्सेस है, वो आपको राइट अवे एक्सेस दे देंगे. आप एडमिन को मैसेज कर दें, वो आपको राइट अवे एक्सेस दे देंगे. अपनी जीमेल आईडी दे दें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी उसमें, लास्ट संडे की भी और उससे पहले की भी. और किसी का कोई क्वेश्चन है? लास्ट कॉल. Generally, this is for 5 months, but I am hoping that we will be able to cover it by the end of March or by the beginning of April, along with past paper questions. Okay, चलें आगे चलते हैं. यहां पर हमारे पास आ रहा है इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम. एंजाइम पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. अब इसके लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी. तवज्जो के बगैर ये आपको समझ में आएगा नहीं. तो आप 100% अटेंशन जो है अभी बाकी सारी चीजों से निकालकर स्क्रीन पे डालें और आवाज को गौर से सुने. आपके पास एक प्लेट है, ठीक है. इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप समझ लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है और इस प्लेट में स्लॉट्स बने हुए हैं, इस तरह से होल्स कह लें आप या स्लॉट्स कह लें, ठीक है. इस तरह से स्लॉट्स बने हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं. आपने हर एक स्लॉट में आयोडीन सॉल्यूशन डाला. आयोडीन सॉल्यूशन. अब आयोडीन सॉल्यूशन से क्या होना है ये मैं आपको अलग से बता देता हूं. आयोडीन सॉल्यूशन ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है. द आयोडीन सॉल्यूशन इज poured in each of the slots available. So let's say you have 12 slots here. In this given plate, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 slots available and each of these slots will be filled with iodine solution. Or you would put a few drops of iodine solution in each of these slots. Few drops in each of these slots. अब iodine solution की एक छोटी सी बात आपको बताता हूं. हमने अभी स्टार्च की बात की थी, इस अमाइलेज की बात की थी कि स्टार्च जो है वो एक स्टार्च बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है. यानी कि ग्लूकोज से ही बना होता है स्टार्च. प्लांट्स के अंदर स्टोर किया जाता है, लीव्स के बहुत सारे सेल्स के अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है. तो स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज फॉर्म है. तो एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ग्लूकोज से बना हुआ है तो ये कार्बोहाइड्रेट है. और स्टार्च को
अमाइलेज के जरिए से ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अमाइलेज इज एन एंजाइम दैट वर्क्स ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इट इनटू माल्टोज, ये हमने पहले ही देख लिया है। एक एडिशनल चीज जो आयोडीन के बारे में बताऊंगा अभी बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट, वो क्या है कि आप एक्चुअली स्टार्च के टेस्ट के लिए आयोडीन यूज करते हैं। जब आप सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर होगा आपके लिए या फोर्थ चैप्टर होगा अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, तो जब आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपको पता चलता है कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आप एक्चुअली आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं। किस तरह से? अगर मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब देता हूं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिक्विड मौजूद है, मैं आपसे पूछता हूं इज देयर एनी स्टार्च? अब आप इसे चख के नहीं बताएंगे, यू वोंट टेस्ट इट, you don't have to actually. You can simply use iodine solution. What you have to do is you're going to put a few drops of iodine solution here in the given test tube, in the given sample. You would put a few drops of iodine solution. And as I told you, iodine solution is originally orange brown in color. When you put a few drops of iodine solution in the given sample, if there is any starch present, when the starch reacts with iodine solution, it becomes blue black. So if you see any blue black color, that means if you see any blue black color, that means the test is positive and starch is present. But if it stays brown, if it doesn't change to blue black color, if it stays brown, that means the test is negative and there is no starch in the given solution. So iodine जब भी starch से mix होगा, एक point जो आपको याद रखना है, अपने जहन से बांध लेना है, जब भी iodine solution starch से mix होगा, what will you see? You will see blue black color. अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब स्टार्च नहीं है। स्टार्च की प्रेजेंस तभी आपको पता चल सकती है जब आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर आता है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से अगर ब्लू ब्लैक कलर नजर आए, दैट मींस स्टार्च इज प्रेजेंट। ओके, नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस, अब आप देखें आपके पास ये 9 सॉल्यूशंस है। आई जस्ट इरेज इट एंड रीराइट इट फॉर यू ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। Okay. Now iodine solution is orange brown in color. You're going to put orange iodine solution here. In all of the given slots, you have put iodine solution. Okay. Now you have a test tube here. In this test tube, you have a starch solution. You know that there is a starch solution. आपने टेस्ट नहीं करना, आपको पता है कि starch solution है. At 30 degrees Celsius, you can, how can you maintain the temperature? जब भी आपने टेम्परेचर मेंटेन करना हो, कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसके लिए एक ही जवाब है जो आप अपने पास लिख लें। अगर कोई भी आपसे पूछता है हाउ डू यू मेंटेन द टेम्परेचर, आप कहेंगे बाय यूजिंग thermostatically controlled water bath. कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी सिचुएशन में अगर कोई आपसे पूछे कि आपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टेस्ट ट्यूब में, किसी भी बीकर में, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने हाउ डिड यू मेंटेन द टेम्परेचर, देयर इज ओनली वन वे दैट यू आर गोइंग टू राइट, thermostatically controlled water bath. This is how we are going to maintain the temperature at 30, maybe at 40, maybe at 50, maybe at 25. हमने यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया है टेम्परेचर को बाय यूजिंग थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। ओके,
अब यहां पे है क्या हमारे पास, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है क्या जो 30 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन की गई है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? यू हैव द स्टार्च सॉल्यूशन in which you have put a few drops of iodine, amylase, not iodine, sorry, iodine तो आपने इन स्लॉट्स में डाला है, यहां पर आपने कुछ ड्रॉप्स अमाइलेज सॉल्यूशन के डाल दिए। अगर आपको पता हो अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोस में। कीपिंग दिस इन माइंड, जैसे ही आपने अमाइलेज डाला, एज सून एज यू पुट अमाइलेज सॉल्यूशन इन द गिवन सैंपल, you would start the stopwatch. स्टॉपवॉच को फौरन आप स्टार्ट कर देंगे जैसे ही आपने अमाइलेज सॉल्यूशन डाला। लेट्स से आफ्टर 10 सेकेंड्स, मे बी आफ्टर 30 सेकेंड्स, मे बी आफ्टर 1 मिनट, जो भी टाइम आप रखना चाहते हैं। हम लेट्स से कि 1 मिनट रख रहे हैं। आफ्टर 1 मिनट you will take few drops of this solution. You can use the syringe for this, or you can use a dropper. Dropper would be much simpler. So you can use a dropper to pick few drops of this solution and put it here. So you would put few drops of this solution, which is a starch solution, on slot number 1 after 1 minute. After 1 minute of putting amylase, अमाइलेज डालने के फौरन साथ ही आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, और जब 1 मिनट हुआ उस पे तो आपने यहां से कुछ ड्रॉप्स लिए इस सॉल्यूशन के और इस जगह डाल दिए। अब आपको यह बात पता है कि स्टार्च जब भी आयोडीन से मिक्स होती है क्या होता है? जब भी स्टार्च आयोडीन से मिक्स होती है क्या होता है? What happens when starch is mixed with iodine solution? What change do you see? Blue black color, yes. So you are going to see blue black color here. Okay, now you will again wait for 1 minute. स्टॉप वॉच आपकी चल रही है। जब स्टॉप वॉच पे 1 मिनट हुए थे आपने कुछ ड्रॉप्स यहां डाले थे। अब स्टॉप वॉच पे जब 2 मिनट्स हो जाएंगे, आफ्टर 2 मिनट्स, दैट मींस 1 मोर मिनट, अब आप दोबारा से यहां से कुछ ड्रॉप्स लेंगे, ठीक है, इस सॉल्यूशन से, स्टार्च सॉल्यूशन से, और दूसरे स्लॉट पे, स्लॉट नंबर 2 पे डालेंगे। अगेन यू विल सी ब्लू ब्लैक कलर बिकॉज स्टार्च इज मिक्सिंग विद आयोडीन सॉल्यूशन। You will repeat this process after 1 more minute. That means after 3 minutes, you will take few drops of starch solution and you will pour it here. And again, you're going to observe the blue black color. And after 4 minutes, again, you will do the same thing. You will see blue black color. After 5 minutes, you will do the same thing and you will see blue black color. After 6 minutes, you do the same thing, but this time you don't see the blue black color. अब मेरा सवाल यह है कि 6th मिनट पे आपको ब्लू ब्लैक कलर क्यों नजर नहीं आ रहा? अब आप इसके बाद 7th मिनट पे देखेंगे, अगेन ब्लू ब्लैक कलर नजर नहीं आएगा। 8th पे भी नहीं आएगा, 9th पे भी नहीं आएगा, 10th पे भी नहीं आएगा, 11th पे भी नहीं आएगा, 12th पे भी नहीं आएगा। सवाल यह है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर आ रहा है। 6th स्लॉट में भी वही आयोडीन सॉल्यूशन मौजूद है और इस पर भी मैं वही स्टार्च सॉल्यूशन डाल रहा हूं जो बाकी सब पे डाला गया है। तो बाकी सब में ब्लू ब्लैक कलर आया, 6th में ब्लू ब्लैक कलर क्यों नहीं आया? यस, द रीजन इज क्योंकि आपने अमाइलेज डाला था, और अमाइलेज का काम क्या है कि वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में। तो 6th मिनट तक इसमें जितनी भी स्टार्च थी सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी किसमें? माल्टोस में। और माल्टोस को डालने से ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता। माल्टोस अगर आयोडीन से मिक्स हो तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलता आपको, स्टार्च से मिलता है, माल्टोस से नहीं मिलता। इसलिए
यहां पर आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर नहीं आया क्योंकि स्टार्च ही नहीं बची थी उसमें। ब्लू ब्लैक कलर आने के लिए स्टार्च का आयोडीन सॉल्यूशन से मिक्स होना जरूरी है। अब उसमें स्टार्च ही नहीं बची तो ब्लू ब्लैक कलर कैसे आएगा? किसको समझ में नहीं आया ये एक्सपेरिमेंट? हाइफा, समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले देखें, आपके पास यहां पे स्टार्च सॉल्यूशन है, सही है। स्टार्च सॉल्यूशन के लिए आपने एक बात समझ ली कि स्टार्च जब भी आयोडीन से मिक्स होगी, स्टार्च सॉल्यूशन जब भी आयोडीन सॉल्यूशन से मिक्स होगा आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर आएगा। लेकिन आपने इस स्टार्च सॉल्यूशन में हाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू माल्टोज? देयर इज अमाइलेज constantly converting it into maltose. आपको यह बात पता होनी चाहिए कि amylase is an enzyme that converts starch into maltose. ये तो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस कर लिया था। इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में हमने ये बात की थी कि starch is converted into maltose with the action of amylase. तो आपने क्योंकि इसमें amylase डाला है तो ये अमाइलेज कॉन्स्टेंटली कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को माल्टोस में, बट इट वुड टेक सम टाइम। तो शुरू में जब आप यहां पे ड्रॉप्स डाल रहे थे तब तक स्टार्च इसके अंदर थी, इसलिए ब्लू ब्लैक कलर नजर आ रहा था। लेकिन 6 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सारी स्टार्च अमाइलेज ने माल्टोस में कन्वर्ट कर दी है। अब सारी स्टार्च कन्वर्ट हो चुकी, इसमें स्टार्च नहीं बची। तो अब अगर आप ये सॉल्यूशन डालते भी हैं तो ब्लू ब्लैक कलर नजर नहीं आता आपको। जी हाइफा, और किसको समझ में नहीं आ रहा? हिबा, सेलिना, शबी, किसको समझ में नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो आप बता दें कि आपको समझ में आ रहा है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हिबा, वेरी गुड। शबी, सेलिना, सेलिना, डिड यू अंडरस्टैंड? परफेक्ट। अब सवाल यह है कि क्वेश्चन में या हेडिंग में हमने देखा इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर कहां इस्तेमाल हुआ यहां पे? टेम्परेचर का इफेक्ट हमें कैसे पता चल रहा है? वो तो इसमें कहीं यूज ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम अमाउंट ऑफ amylase सॉल्यूशन, सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, सेम अमाउंट ऑफ आयोडीन, सारा सेटअप सेम वापस से आप करेंगे। लेकिन इस दफा टेम्परेचर ये नहीं होगा। अब आप टेम्परेचर कर लें 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस जब आप टेम्परेचर करते हैं, मुमकिन है कि यहां पे आपको ब्लू ब्लैक कलर नजर आए, यहां पे ब्लू ब्लैक कलर नजर आए, और यहां पे ब्लू ब्लैक कलर नजर ना आए। इसका मतलब इट वुड टेक 2 मिनट्स। Yes, primarily it would be the part of ATP. It would take 2 minutes at 40 degrees Celsius. It would take 2 minutes for the same amount of amylase to convert the same amount of starch into maltose. At 30 degrees Celsius, it took 6 minutes or 5 minutes actually. It took 5 minutes. But at 40 degrees Celsius, it would take 2 minutes. Let's repeat the same experiment at 50 degrees Celsius. At 50 degrees Celsius, the enzyme does not work. All of these will be blue black. So even at 12 minutes, you don't see that the starch is converted into maltose. Why? Because the enzyme at 50 degrees Celsius is denatured. वो कैसे काम करेगा? वो कैसे माल्टोस में कन्वर्ट करेगा जब एंजाइम डीनेचर हो गया? तो ये सारा ही ब्लू ब्लैक आपको होता हुआ नजर आएगा।
आप सेम एक्सपेरिमेंट 20 डिग्री सेल्सियस पे भी रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, इस सेम एक्सपेरिमेंट को आप पीएच की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कर सकते हैं। यहां पे तो हमने इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रखा है ना, यहां पे हमने टेम्परेचर लिख दिया। अगर मैं इसे पीएच की इन्वेस्टिगेशन के लिए करना चाहूं, अलग अलग पीएच का इफेक्ट देखना चाहूं, तो कैसे करेंगे? आप पहले सेम एक्सपेरिमेंट पीएच 3 पे, अब मैंने आपसे टेम्परेचर का पूछा था कि आप टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आपने कहा था थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ से। पीएच 3 कैसे मेंटेन करेंगे भाई? हाउ वुड यू मेंटेन पीएच एट 3? You would have to use buffer solutions. Buffer solutions are solutions that resist. Sorry, I got disconnected. I'm sharing the screen again. हम कंक्लूड कर रहे हैं बस। ये लास्ट पार्ट चल रहा है हमारा एंजाइम्स का। ओके, मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर के लिए तो हमें समझ में आ गया कि टेम्परेचर के लिए हम किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट चेंज द टेम्परेचर एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट with the same amount of amylase. This is important, okay? You have to keep, you have to use the same amount of amylase, the same amount of starch, and even the same amount of iodine in the slots. बाकी सारी चीजें सेम रहनी चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा ताकि एक फेयर जजमेंट आप दे सकें कि टेम्परेचर का कितना इफेक्ट होता है। लेकिन इस सेम एक्सपेरिमेंट को आप पीएच के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहां पर तो हम कर रहे थे इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यू कैन यूज द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज ऑन एंजाइम और एंजाइम्स एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन। अब पीएच के लिए कैसे यूज करेंगे? देखिए, यहां पर आपने टेम्परेचर चेंज किया था, 30 किया, फिर 40 किया, फिर 50 किया। बट अगर आप पीएच को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट विद पीएच 3। You can do the same experiment at pH 3 first, then you can do the repeat the same experiment at pH 5 maybe, then at pH 7, then at pH 9, then at pH 11. या अगर आप 3 करना चाह रहे हैं तो you can do pH 5, pH 7 and pH 9. At these 3 different pH you can just repeat the same experiment. Now before I say anything, यहां पर आपको टेम्परेचर के लिए भी, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यू हैड टू यूज थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यू हैड टू यूज
thermostatically controlled water bath. But for the pH to be maintained, how would you do that? There are special solutions called buffer solutions. You may have heard about buffer in chemistry, but if not, then buffer solutions are solutions that resist change in pH. These are specially made solutions that would resist change in pH. They would be at a particular pH. Let's say the first buffer is at pH 5. So the pH stays at 5 for this experiment. Then you're going to discard it and you're going to use another buffer for the same amount of amylase, the same amount of iodine, the same amount of starch. You're going to repeat the experiment, but this time you are going to use another buffer which maintains pH at 7. Or maybe you would use nothing to maintain pH at 7 because that is the neutral pH. Then at pH 9, you would have to use another buffer to maintain pH at 9. And you can see how fast or how slow the enzyme is working. कितनी जल्दी blue color आना बंद हो जाएगा या कितनी देर से बंद होगा, that would tell you कि reaction कितना तेज चल रहा है या कितना slow चल रहा है. अगर एक दफा ये 30 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट्स में होता है और 20 डिग्री सेल्सियस पे ये लेट्स से 8 मिनट्स में होता है और 40 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट्स में होता है, तो आप कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन स्लोएस्ट है, 30 पे इससे थोड़ा फास्ट है और 40 पे फास्टेस्ट है. तीन रीडिंग्स आपके पास आ जाती हैं. ये 40 में 40 डिग्री सेल्सियस पे इट टेक्स 2 मिनट्स फॉर द स्टार्च टू बी कन्वर्टेड बाय amylase. So 2 minutes taken. At 30 degree Celsius, it would take, let's say, 5 minutes, जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है. And at 20 degree Celsius, let's say it would take 8 minutes. तो आपको पता चल जाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन स्लोएस्ट है, 30 पे उससे थोड़ा फास्ट है, 40 पे उससे थोड़ा फास्ट है. अच्छा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज यहां पे लिखी हुई है. स्पॉटिंग टाइल है, आप सिरिंज यूज कर सकते हैं या मैंने आपको बताया था ड्रॉपर यूज कर सकते हैं या सिरिंज यूज कर सकते हैं टू ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन एंड पोर इट इन द फर्स्ट स्पॉट. आफ्टर 1 मिनट हमने किया था, यहाँ पे 2 मिनट्स लिखा हुआ है, आप 30 सेकेंड्स भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. After 2 minutes, repeat the same process and put the solution in spot 2. At 6th minute, all the starch in the solution has been broken down into maltose. No color change after 6th spot. Repeat the same experiment at 20 degree Celsius. यहां पर आपको बफर वाला नजर आ रहा है. अगर आप pH के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो pH 7 पे रिएक्शन सबसे फास्ट है, pH 5 पे रिएक्शन स्लो हो गया, it took 9 minutes. और pH 5 पे सॉरी एंड pH 9 पे it took 8 minutes. तो इससे आपको क्या पता चला कि जब आप pH को चेंज करते हैं तो उससे भी एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट आता है. एंजाइम की एक्टिविटी स्लो होती है या फास्ट होती है. यहां पर आपका चैप्टर कंक्लूड होता है.